Okay. So, good afternoon, all. Uh, my name is Ridham Gupta, and I'll be conducting this Linux workshop with Madhur from on behalf of COMSA. So we have thought that Linux is a very critical skill, or you can say an enhancing skill that me and Madhur face during the placement sessions. So we thought let's introduce our juniors and our batchmates to Linux as soon as possible. So we thought of conducting this workshop for you, and in this workshop we are aimed at making your creating your interest towards Linux and open source operating system, so that you can use it more. Let me tell you a story with regarding this. Actually, I only use Ubuntu. I don't use Windows and all. While my interviews in Veritas, in my technical interviews, in my technical interview, the interviewer told me to share my screen. You have to type some code and all. So I directly open the terminal and write gedit, and she told me that, oh, you use Ubuntu. I said yes, I only use Ubuntu. She told me yes, it's a nice practice. In our company we use Ubuntu only. So I think from that point I understood that Linux is actually a very useful skill. So I thought, at that time I didn't know much of that of Linux, so I took few courses and learned from few books. So I thought, let's pass that knowledge to my juniors. So we'll start this. Madhur, you want to add something? Uh, so so the thing is, I'll give you a task. I want to create your interest in Linux, so I'll give you a task. You'll have to write in the chat box that in how much time you can perform that task. All right. So you have to create a folder on desktop. Uh, you can name it uh, anything you want. Then in that folder you have to create 100 different folders, naming from folder 1 to folder 100, and in these 100 folders you have to create 100 files, naming file 1 to file 100 in every folder. So tell me, how much time will you take to do this task? You can write it in the chat box. Come on, think about it. A little bit of guesswork. I'll again um, narrate the task. You have to create a folder on the desktop, and in this folder you have to create 100 different folders, and in these 100 folders, in each of them you have to create 100 different files. Tell me, how much time will you take for that? Yeah, take too long. Anybody else? Oh, okay, 4 days. Okay. Okay. Okay, 2 to 3 days. All right, all right. I think not many of you want to guess that, so I'll show you how I can do this in Linux. First, I want to share the screen. Is it visible? My screen? Yes, Rhythm. All right. So I'll start this.
I'll open the terminal. For that, since we are using Ubuntu, I'll use a terminal for that, and I use the command Control Alt T for that. I don't need to use that GUI. So uh, the currently I'm in my home directory. It represents my home directory, that I am in my home directory, that tilt sign. So now I want to come to the desktop. Since you people have used Python and all in the first year, so I think you are used to at least this part. So I'll come to desktop cd, just what, Madhur? I'd like to say to all the participants that please, do, if possible, take a pen and paper with you. There are going to be commands that we are going to tell you that are really important and can be used for faster access to Linux and other things. So we'll like you to note it down. Please carry a pen and paper with yourself while you are attending this lecture. Okay, Thank you. so there is a shortcut. When you write cd stands for change directory, and to change the directory, uh, you have to just type des. Since you have to come to desktop, and you will press tab, and it will uh, complete it on its own. So now I'm in the desktop, so here I'll create a directory, mkdir. It's used for creating a folder, mkdir workshop. All right, you can see on the desktop there is a folder called workshop. So I'll go in this workshop. So I'm in the folder. I'll show it to you parallelly. So here I'll create 100 folders. So for that I'll use the command mkdir folder 100. With this simple command, there are these many folders, 100 folders over here. So now I'll create 100 different files in this. Just check it out. Touch folder. It is creating, it is taking some time since there are too many files, but we can see it has started to create files. In this folder number 5 we have this file, and in folder number 100 it's empty, but we'll look at it. There will be files in a few seconds. Look, there are the files. So I created these files with just two commands, this touch and this mkdir command. So this is the power of Linux. We can do a lot of things on the terminal. Terminal is really a very powerful tool, but we are not taught in our college or in our academics about this much. So we thought, let's introduce to the power of terminal. So now since I have created these files, so now I'll want to wait a second. There are more people. So now I'll show you another thing. Since I'm in the workshop directory, now cd double dot, it goes back to its parent directory, that is desktop. Now I'm again on the desktop. So now I want to delete this folder workshop. So I'll use the command rm workshop. Rm stands for remove, but it won't delete. Cannot remove workshop is a directory. So wait a second. Okay, so no people are around here. So for this we have to use another command, rm-r workshop. This command deletes the file recursively. Look, the folders have started to disappear from this folder workshop. So there are many options with, and the workshop is also gone, workshop folder. So this is the power of terminal. We can use a terminal to do each and every task in Linux. And if you are
expertise in Windows, you can also use that in Windows, but I don't think Windows terminal is that powerful. So I'll go back to the parent directory, sorry, cd space double dot. So here I showed you how a 2 days task, which is actually a unnecessary task, could be done in few minutes. There is no use case to it, but you can use it to flex your muscles in front of your non-computer science cousins and brothers. I just did yesterday in front of my brother, and he was like, how can you do this? So that's the power of Linux and the terminal. So now I've shown you how to open the terminal using Control Alt T, and to close it you have to type Control D and it will close. Alright, so these are the basic things of the terminal. I'll open it again. I'll show you few commands that are actually very basic, but you should know about it. We'll use it in further lectures to show difficult tasks. Alright, so first echo hello. As the command suggests, it echoes back. Whatever we write in echo, it throws it back to us. Alright. The aim of my first task was to create your interest, because uh, it's very hard to um, it's very hard to create interest in terminal. It seems very technical, so I thought, let's create your interest in this with that unnecessary task. So I use the first command echo over here. So now another command I'll use, it is cal command means stands for calendar. It shows the today's calendar, today's date. So there is the calendar over here. You can write these commands. We'll use it in further lecture when we'll have to pipeline these commands to do some interesting task. Alright, so another command, calendar command with some options. cal dash y से होता है, इससे हमको पूरे साल का कैलेंडर मिल जाएगा यहाँ पे, 2021 का पूरा कैलेंडर मिल गया यहाँ पे हमको. So there are many options with each and every command. We'll look forward how to get these options and what these stands for. So the next command we'll use, it will be date command. So there is this date command. It shows the time in IST, and there is, I think we can do this as well. Yes, it ये universal times में भी दिखाते हैं. अगर if we use dash u, so then it will use for universal time zone, whatever this is. This is Indian Standard Time and this is universal time. So again, so since we have got so much mess around here, so there is another command known as clear command. We can use to clear the terminal with that. Alright, I think there are new people joining here. Alright, so let's move forward. टेल मी, समझ में आ रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है, या मैं थोड़ा सा स्लो करूँ या थोड़ा फास्ट करूँ? प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स. थोड़ा सा मुझे फीडबैक मिल जाएगा. एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड नाउ हाउ टीचर्स फील व्हेन पीपल डोंट इंटरैक्ट. सो कैन यू प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स द पेस ऑफ द कमांड्स दैट आई एम यूजिंग, और आई शुड स्लो डाउन और फास्ट अप, प्लीज़. Alright, I think I should carry forward. So since we have written so many commands over here, so what if we want to get back on these commands? So we can use the up arrow key. You can't see it, I'm touching the up arrow key. We can go back to all the previous commands that we have written, that I have written while practicing and all. You can see all this over here. So or the other thing is, we can also get this command using the history command. Get these details of command using the history command.
So these are the history commands. Actually it is stored in a file in our home directory, in which uh, each and every command is stored that we have used in our history. So now here I'll show you a trick. Since you will have to, if imagine if you have to use this command echo hi. Yeah, I have written it previously before starting the session. If you want to use this command echo, so you will have to go 47 to 15 times up and up and up if you don't want to write echo hi. So there is another thing you can use over here, and it's exclamation and the number on which the command is present, that is 15. And it used echo, it used the command, and it performed its task, that is throw the voice back hi. So it's this command. Or there is another thing you can do over here. Double exclamation means the previous command that you have used. Since we have used echo, so it again did that command echo over here. So these are some basic commands जो तुमने शायद कॉलेज में सीखी होंगी फर्स्ट ईयर में, तो और मतलब सेकेंड ईयर में भी, या जो खुद यूज़ करते हो वो भी सीखी होगी तुम लोगों ने. तो अभी जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लिया सीखा था, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था उबंटू को लेकर. सो पहला कन्फ्यूजन था व्हाट इज़ शेल, व्हाट इज़ टर्मिनल, व्हाट इज़ कमांड, the difference between all this. So I'll make it clear. Commands are just the text. All right. Whatever we write over here, these are just text. It is interpreted by the shell, and we reach the shell using this terminal. The terminal is our window to the shell. Like if you have written a C program, you write something printf something something printf something something something. All right. It is if you will it is interpreted by, it is compiled by the C compiler, that is GCC compiler. So in GCC compiler, you can correlate with the GCC compiler is the shell that compiles our commands over here, and we write the C++ or C code in a notepad or something. So terminal is that notepad in which we write commands, and shell interprets it and throws us back its output. So that's the difference between shell, terminal and command. When you write a command, the meaning of the command is interpreted by a shell. A terminal is the window to shell. We get access to shell using terminal. And you have also heard about bash scripting or bash. It is nothing but the name of the shell that we are using in Ubuntu. It is the most popular shell that we use. Like for C compilers, there are different compilers like GCC and some GOpen करके भी था कुछ. There are different compilers. Similarly, to process the terminal's commands, there are different shells, and the most popular shell is bash shell. उस shell का नाम है bash. And the other thing is commands are case sensitive. All right. Commands are case sensitive. I think we should interact a bit. कोई कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहता है या कुछ भी? The chat box is open, or you can unmute yourself and ask few questions or something. क्या बात है यार, कुछ एनर्जी नहीं है यार. मैं तो ये लेक्चर नहीं ले रहा, मतलब लेक्चर नहीं है, तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो. मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम अगर मुझे नहीं जानते तो तुम मैं चिल हूँ, मेरे से बात कर सकते हो, तुम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. आई विल आंसर इट प्रॉपरली. किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस अगेन? ओके ओके, सो लेट्स इमेजिन इट दिस वे. This is command. All right. Command is what we write in the human readable form. It goes through terminal. I have shown this as terminal. Terminal is where we will write this command.
this command is written in this terminal, and this terminal is linked to a interpreter, you can say, which is called shell. इस shell से connected होता है ये. Then this shell throws back the information to the terminal, or depending on what kind of output that command has, that command wanted. Like if it wanted to shut down the PC, it won't throw back anything at the terminal. It will just shut down the PC. So depends on what command the shell will send back the data or won't send back the data. So this terminal is actually the window where we can write and where we can see what shell has interpreted about us and the commands we have written. Tanmay, is it clear? All right. Can you repeat? Can you repeat what is shell again? All right. Can we say that commands are medium shell and terminal interact? I don't think to use bash you need any kind of IDE or anything. There are inbuilt IDEs for our Ubuntu on its own, like Nano. We have Nano, like we want to shell.txt. There is an inbuilt you can say IDE for that. We don't need any kind of external shell for that. Apeksha, I can't understand what's your question is. Can we say that commands are medium shell and terminal interact? Apeksha, can you throw back your question again? Yeah, first summed it up properly. So I think अभी तक किसी और को देना चाहिए था ये होस्ट करने का. All right. So now since we have seen a lot of commands over here, you will say how can we know what commands does what, and what are these options that are linked to them, that how will you know about them. So now we'll start the important part of our workshop, that is structure of commands. All right, so it goes like command name, options, and inputs. So the here date was the command, dash u was the option, dash u, and inputs if there are inputs to the command, like for remove command that I've showed in earlier phases in the beginning regarding that workshop folder. Remove was the command, dash r was the option that deletes the folder that we have given as an input recursively. So it was the input, it was the option, and it was the command name. So this is the basic structure of the commands. Commands are actually the program that we want to run, and once the shell knows its name, it searches for it in the shell path. You will say ये क्या बोला मैंने अभी. So actually जो shells होते हैं ना, जो ये commands होती है ना, ये सिर्फ programs हैं जो एक जगह पे stored है हमारे PC में, मतलब ये Ubuntu में stored है कहीं पर. तो ये जब हम कुछ command लिखते हैं, उसको जो हमारा shell है ये ढूंढता जाके कि मेरे पास ये command है या नहीं है. अगर है तो उसमें हमारा इनपुट डालकर उसके थ्रू प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है. लाइक आई राइट एनी काइंड ऑफ रैंडम वर्ड ओवर हियर thinking that it's a command. So it will say command not found since it is not present in the bash folder. So you will say where are these commands located. So I'll show you how you can see that. You can type echo
this dollar sign and path is, it actually shows where my shell finds goes to find the commands that we are looking for. All right, so there are these folders over here. I'll no It's better this way. So this is one folder. Look, these columns are the distinguishing factors over here. It's app oracle. This is a command is present over here, but it means that our shell looks for commands in these folders. These are the folders that we have combined our shell to. This is another folder, this is another folder, this is another folder. So these are a few folders where our shell looks for the commands. Now we'll use a command. Which command is used to show us which command is stored where. All right, like we have used the command cal in the beginning. It's used to show the calendar. Now you will use the command which over this cal command. Which cal? This command will show where the cal command is stored, and here it is, user bin cal. All right, so let's see where it is in our folders. Look here, user bin cal, in the folder user, in the bin folder our command is located. Let's go search for them over there. All right, so it told us user. Where is user? User bin. It's taking too long. So there it is. These are the commands stored over here. Let's see where is C for calendar. CALC. So there is the cal command located over here. I can't open it since it's compiled earlier. So that's the use of which command. And you will see different commands are located at different places. Like, I'm sorry for the delay. So this which since I have Java installed over here, let's see where is Java C command located. So user bin Java C, it's also stored in user bin folder. Let's see where is which command stored. It is also stored in user bin and which command. Similarly, we can check out for every command over here that where are these commands stored. So now I'll go with the options part. You have seen few inputs, which was the command and cal was the input. So now I'll show you few options over here, like cal 2019. I want to see the calendar of 2019. So it showed us the calendar of 2019. Here it is, and we can see any kind of calendar of any year. So now what if I want to see the calendar of December only? So for that I'll write the month number, that is 12, and 2019, and it showed the calendar of 2019. Look over here, there cal has two inputs, because a command can have multiple inputs. And now you will say, how can we know a command can have multiple inputs or not? So for that there is a full manual regarding that, which is known as man pages. So we'll learn about those later. So these are the multiple operands.
over here. So now we'll we'll look into something else, like we can combine few commands as well together, like dash y. We used it previously, it shows current year. Alright, let's imagine if we have more such commands like y, like day, like time. So these are not the options of cal command. I'm just using it for the reference. You can write them as this, like dash y dash d dash t, or you can also write them as dash y dash d dash t. In this way, these are all coupled together. There, this is equal to dash d dash t. If you have installed any kind of software on Ubuntu, you might have been through all these little tweaks over here. Like you can couple these commands together. So now let's go. I'll show you another thing. Date dash u, we used it earlier. It used to give us the today's date with the time, universal time. So now these are the short forms of a command, or of any kind of option. We can also use a full form of these. Like for that we have to use double dashes over here. Universal date, universal. So for it is equivalent to this, but when we have to use the full command, we have to use, when we have to use full name of the option, we have to use double dashes. So it's unnecessary, so we use dash y mostly, or any kind of short command. We don't prefer long commands because who wants to write more. So these are few tweaks over here. So now I'll show you another thing. Chaining of commands, like cal dash a. I'll tell you what it is. Dash a stands for after. I I'll I'll go for, I want to see the calendar of February. So dash a 1, or let's see, actually ठीक है, there it is, January 2021 and February 2021. All right, this is one kind of it's an option and an input over here. All right, I'll chain another dash a 1 dash b 1. Dash a stands for after and dash b stands for before the current month. So before, it showed December 2020 as before, January 2021 current, and after 2021 February. So this is how we changed our commands. Like cal was the command name, a was the option, one was its operand, dash b was another option, and one was its operand. So this is how we change different commands. So now you will say, how do we know all about these options? So there is this command which is known as man command. It is used to show, all the options and all the operands of any commands that we are using. Like here it is, like cal, name of the command was cal, and cal displays a calendar and date of the Easter. Actually there is everything present on the Ubuntu itself. We don't need to Google anything. If we want to search for anything, for any command on the PC that we want to use, we just have to write on the terminal. Even if we are wrong, terminal will send us an error that did you mean this command, so we can understand that this is the command we are looking for. Actually terminal is very smart, so it knows what we want, so it will show it to us. Alright, so this was the command. These are its options. Look, the options in the square brackets, these are not compulsory. Everything in the square brackets are not compulsory. Alright, so it's not necessary to write them. We can use cal without any kind of options and operand as well. You have seen it on the earlier phase. So dash at turn of the highlighted
highlighting of the day if we use it. Let's open another terminal. Alright, we'll use it. Cal dash h command. Oh, sorry. Mm. Oh, alright. uh, we'll not use it right now. Let's check out the other commands. Display Julian calendar. Dash j is used to show the Julian calendar. Similarly, dash s with the country code, like our country. Dash m is the month. Display the Orthodox Easter. So these are all the options that you can use with a command. Actually, who use calendar command over terminal? So just for the reference purpose, I have shown it to you. So now close it. So now let's tell you how to move around in the in Ubuntu. So like I have told you, cd is used for, like I'll use few other commands. Alright, here pwd command stands for print working directory. Alright, so it showed /home/rtm because I am in the home. Alright, so let's understand few other things. This 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 symbol shows that I am in the current directory, in the home directory, like here it is. Alright, so if I'll write this, it is a directory bash, so it is a directory. So now I want to go somewhere else. Cd do. Look, I told you, whenever we type it, when we type a few part of a directory that we want to go, if we'll press the tab, it should show, it should complete the directory. But since there are two directories which starts with do, that is document and downloads, so it showed us the options that there we can go, which directory we want to go. So I want to go download. I'll just write dow and I'll press the tab button, and it will complete the directory on its own. So here it is, we are in the download directory. uh, now I'll show you another thing. cd, I've told you earlier, cd double dot stands for we want to go to the previous directory. So we went back to the back to the home directory over here. So here we are. Now I want to show you the ls command. Ls command stands for list all the files present in a folder. We will understand about the ls command tomorrow properly, because there are so many options regarding to this. You will get to know a lot about it, like ls.a. Can you tell me the difference between ls and ls-a? Can anybody please tell me if anybody has any kind of idea about it? Alright, I don't think anybody will speak. Alright, so ls and ls dash a has a difference, that ls dash a stands for all. Now you can see a difference over here. When I used ls, there are only there are small, there are a very few number of files over here. But when I use dash a, it showed more of such dot dash dot, you can see dot local dot java. So dash a means we want to look at all the files present in it. There are hidden files in a directory. In Ubuntu, I'll show you a thing. You can see over here, there are dot files over here. These dot files are actually hidden files.
These are visible because I have turned the visibility on. If I'll press Control plus H, they all will disappear. They all just disappeared from here. And if I'll press Control H again, it all appeared back. Dot local, dot g, dot cache, all of them. So dash a command stands for printing all the files and all the directory present. रिदम आई सजेस्ट यू कीप कंटिन्यू रिकॉर्डिंग और मेरे इसमें बीच बीच में वो अटक रहा है. ओ, क्या अटक रहा है? हेलो. हाँ बोल. हाँ मैं रिकॉर्डिंग बीच बीच में अटक रहा है वो, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से मेरा स्क्रीन अटक रहा है. ऑलराइट. सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू? स्क्रीन शेयर करूँ या तू कर रहा है स्क्रीन शेयर? और स्क्रीन शेयर करूँगा ना मैं. हाँ तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ अपनी. मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है अपनी. यू कैन कैरी फॉरवर्ड. इसने तो लेफ्ट ही कर दी मीटिंग. Madhur, are you sharing the screen or should we wrap up today? हेलो. Yes. मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस है क्या बीच बीच में? इसमें अभी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं. हाँ आ रहा है. या अभी हाँ दिख गया. तो अभी मेरे को आपको मेरा लिनक्स है पूरा, लिनक्स का ये पूरा. हेलो. यस यस मधुर. तो मैं आपको जैसे कि बोल रहा था कि stat का कमांड हम देखेंगे अभी. तो पहले हम मैन पेज देख लेते उसका. मधुर तो अभी जैसे देख रहे हो फुल ना, स्क्रीन कर ले इसको. कमांड का बताएगा भाई कि फुल स्क्रीन. हाँ वर्चुअल बॉक्स को. नहीं मेरा इतना ही आ रहा है, वो इसकी वजह से फिर ब्लर दिख रहा है. ऑलराइट ऑलराइट. ठीक है इतना भी चलेगा. तो अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है पूरी तरह से, है ना? यस. तो इसके लिए इसमें फिर कैसे ना मैन पेज में. हेलो. कोई आई सजेस्ट एक दो जने अपने माइक चालू रखे क्योंकि बीच बीच में मेरे को पता चलता रहेगा हाँ कि हाँ इंटरेक्शन है या नहीं हाँ है, तो मैं ध्यान हूँ दे मैं रहे हूँ. हैं. आई एम हेयर. बोलो. तो इसके लिए अभी देखो जैसे मैन पेज में तुम लोग देख रहे हो ना, तो मैन स्पेस जो भी कमांड का नाम डालोगे ना तो उसके बारे में बताएगा. पहले उसका नेम, फिर उसका ये बताएगा सिनॉप्सिस में. वो बता रहे भाई कि उसके बाद तुम लोग क्या क्या ऑप्शन में दे सकते हो. फाइल दे सकते हो या सिर्फ फाइल ही देनी पड़ती है एक्चुअली, क्योंकि फाइल के बारे में पूरा स्टैट बताता है आपको. और फिर डिस्क्रिप्शन में वो क्या क्या बताते हैं ना, फाइल के पूरे इसके बारे में बताते हैं, सिस्टम के बारे में. और अगर मतलब स्टैट के बाद जो फाइल देते हैं ना, उसमें बताता है कि उसमें आपने कितने ब्लॉक्स लिखे, कितने मतलब कितने लेटर्स लिखे या कितने कैरेक्टर्स लिखे आपने, उसके बाद कितने ब्लॉक्स उसको हार्ड डिस्क पे मिले, उसका आइनोड नंबर क्या है, उसका आइनोड किधर है, एंड ऑल दिखाता हूँ अभी. जैसे ये दिख रहा है अभी आपको, यू कैन सी लाइक हाफ ऑफ इट. मैन पेज गूगल पे भी जाके सर्च करोगे ना तो पूरा यही दिखेगा. बहुत से जने गूगल पे जाके सर्च करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता भाई कि मैन पेज एक्चुअली इसमें भी होता है. बट लिनक्स इज ओपन सोर्स तो वो पूरा बताता है अपने बारे में, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अभी जैसे आपने अभी मैन स्पेस स्टैट डाला था, तो अभी स्टैट स्पेस मैंने एक फाइल बनाई है इधर, आप देख सकते हो ये तीनों कमांड्स अभी बनाई है. डेस्कटॉप पे आके hello डॉट txt, उसमें अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है. दैट इज अ लाइक पूरा खाली फाइल है वो, एकदम ब्लैंक है. खोल के दिखा देता हूँ.
रहे हो hello डॉट txt एकदम पूरी तरह से खाली है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अभी समझो मैंने इसमें लिख दिया कुछ जैसे रिदम या फिर एंटर करके, तो अभी दोनों लाइन में 6 कैरेक्टर्स लिखे मैंने, सेव कर दिया। ओके, फाइल को क्लोज कर दिया मैंने। अब मैंने वापस से किया स्टैट स्पेस hello डॉट txt। अभी फिलहाल कमांड पे ही ध्यान दो, उसका डेटा वगैरह मैं पूरा आपको बता दूंगा। तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइल का नेम क्या है hello डॉट txt। पहले वाला देख लो, पहले जो स्टार्ट कमांड किया था ना, इसके पहले जस्ट आपने देखा नहीं था। hello डॉट txt का साइज पहले 0 था, ब्लॉक 0 था, IO ब्लॉक 4096 था इनपुट आउटपुट के लिए, ब्लॉक 4096, और रेगुलर एम्प्टी फाइल दिखा रहा था। अभी ये रेगुलर फाइल पे चेंज होगा जैसे ही मैंने लिख के उसको सेव कर दिया। तो hello डॉट txt अभी साइज देखो 14 आ गया, 14, जबकि मैंने लिखे कितने 12 कैरेक्टर्स है। बता सकते कोई क्यों क्यों 14 आ रहे उधर? हेलो, कोई बता सकता है 14 क्यों आ रहे उधर? उधर 12 आना शायद चाहिए, लेकिन में 6 कैरेक्टर थे और मधुर में भी 6 कैरेक्टर थे। हाँ देख तन में वो 6 वो 12 हो गए, और शायद इंटर के 2 कैरेक्टर हो गए। न्यू लाइन पे वो चले गए किधर इसके के? लिए। एंटर जो तूने दबाया था ना न्यू लाइन के लिए, शायद उसमें 2 गए नहीं नहीं, होंगे। इंटर को जगह नहीं मिल रहा, इंटर को जगह नहीं मिल रहा चाहिए। ये ले वापस देख ले। दो सेकंड। ये देख, इंटर की ही नहीं है, एक इंटर की है एक, लेकिन उसका इंटर का कुछ संबंध नहीं है इससे। ये 1 और कोई 2 भी बता आया सकता है क्या तभी कोई? ना, जो 1 और 2 आया स्टार्टिंग में नहीं, ये उस। 1 और 2 नंबर, ये 1 और 2 जो देखो दिख रहे हैं ना, ये 1 और 2 जिसको भी जो भी बोल रहे हैं ना, ये 1 और 2 जो है ना, ये लाइन नंबर लिनक्स दे रहे हैं, ये हमारे फाइल में इंक्लूडेड नहीं है। ओके इसको आप सेटिंग्स में जाकर टेक्स्ट एडिटर के बंद कर सकते हो, ये लाइन नंबर्स वगैरह वो। ओके ओके, ठीक है। कोई बता सकता है क्यों आ रहा है ये? स्पेस बार वगैरह क्यों नहीं डाला हुआ है? देख लो कर्सर की तरफ लिंक हो रहा है, और इधर भी देख लो, ये लाइन में, फर्स्ट लाइन में। ठीक है, आप बता दो। तो नीचे बोल रहा है लाइन 1 कॉल 7, तो इसमें कॉलम 7। कॉल 7 पे वो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, कर्सर पर चेंज करूंगा देखो, लाइन 2 कॉल 7 हो गया वो। हाँ नहीं पता भाई। चलो चलो इतना तो अच्छा है कि नजर पड़ी है उसकी उधर, उसने कॉलम 7 बता दिए। बता सकते हैं कोई और ट्राई करना चाहेगा? रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक जा, मुझे थोड़ा गैस करना है, ये मुझे भी नहीं पता है, मैं खुद कुछ चीज़ें मधुर से सीख रहा हूँ। बताओगे या फिर मैं नाम लेना शुरू करूं किन कुछ कुछ जनों के? नहीं नहीं भाई। हम्म, भाई बता, तू बता दे, अब सस्पेंस हो गया, मेरे को खुद जानना है। डिपार्टमेंट में दे दी। अपेक्षा, वुड यू लाइक टू ट्राई? अपेक्षा। ब्रो वो अभी बिगिनर लेवल के हैं सब लोग, उनको नहीं समझेगा अभी, मुझे मुझे खुद नहीं समझा, वो ये तू बता दे। ये बता देता हूँ कि क्यों लिनक्स इज रिटन इन सी। लिनक्स इज ऑलवेज, लिनक्स का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन सी लैंग्वेज, और असेंबली भी थोड़ा थोड़ा यूज किया हुआ है। तो लिनक्स में कैसे होता है ना, सी सी प्लस प्लस में अगर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है ना, तो उसको स्ट्रिंग को ओके। इसलिए एक ये लेते हैं, एक कैरेक्टर की स्पेस एंड ऑफ स्ट्रिंग के लिए या एंड ऑफ लाइन के लिए। इधर एंड ऑफ लाइन है, अभी इंटर कर दूंगा ना, वापस फाइल का साइज चेंज हो जाएगा। देख लो, सेव कर दिया, टर्मिनल पे गए, स्टैट हेलो डॉट टीएक्सटी कर दिया, देख रहे हो एक साइज बढ़ गया वापस, क्योंकि सिर्फ इंटर किया, क्योंकि इधर बैकस्लैश 0 आ ही रहे वो लाइन पे। ऑलराइट। और अभी बोलते रहोगे ये ब्लॉक्स क्या है? मधुर, योर आवाज
तेरी मेरी वॉइस आवाज, ब्रेक हो रही है? यस योर वॉइस इज ब्रेकिंग। 2 सेकेंड। मैं ठीक है बता देता हूँ धीरे धीरे, अगर अटके तो बता देना, मैं चैट बॉक्स में लिखते भी जाऊंगा जो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी ये ब्लॉक्स के हैं ना, उसको मेमोरी ब्लॉक्स कितने मिले हार्ड डिस्क पे, ये नोट नोट करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, काम का पूरा इन्फॉर्मेशन ये। तो हो क्या रहा है ना इधर, साइज तो उसको 15 इसकी मिल रही बाइट्स की, ब्लॉक्स उसको 8 मिले, 8 ब्लॉक्स उसको हार्ड डिस्क पे 8 क्यों मिले ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं ना, तूने चल इतना लिया ना, अभी अभी ये लिनक्स एकदम ये यहाँ आईओ ब्लॉक देख रहे हो ना, हम्म। जो आईओ ब्लॉक्स 4096 देख रहे हो ना, वो 4 KB है, 4 KB। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा क्या करते हैं ना, आप जब भी कुछ भी लिखना शुरू करते हो, अगर आपने फाइल खोल के उसमें सिर्फ एक स्पेस या एंटर भी दबा दिया जैसे अभी किया, \0 आ गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हमेशा उसको 4096 का स्पेस देते हैं लिखने के लिए। मतलब ये 4096 किधर से आया ना, कल मैं आपको बताऊंगा पूरा फाइल सिस्टम कैसे और उसका फाइल सिस्टम कैसा बना हुआ है लिनक्स का। तो कोई भी फाइल में आप लिखोगे ना तो आपको हमेशा 4096 ही मिलेगा। 4096 के ऊपर चले जाओगे ना, 4 KB के ऊपर लिख लोगे ना आप, अगर 4 KB किलो बाइट्स के ऊपर आप फाइल में लिख लोगे ना, तो 8000 कुछ हो जाएगा, तो डबल द साइज कर देगा वो, क्योंकि हर बार आपको इस पे ब्लॉक एक मिलता है, ब्लॉक है वो का साइज 4096 है, मतलब 4 KB है। 4 KB खत्म कर दोगे ना, आपको पूरा दूसरा ब्लॉक मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके डेट स्पेस नहीं मिलते। ट्राइंग टू गेट इट में, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। मधु एक बार वो बता, तूने हेलो। क्या बोला था, लिनक्स इज रिटन इन सी, और उसके वजह से क्या हो रहा था, वो साइज हमारी 14 क्यों आ रही थी, वो वाला पार्ट एक बार वापस रिपीट करना, तेरा वॉइस ब्रेक हो रहा था। हम्म। अभी हो क्या रहा है ना, 2 सेकंड 2 सेकंड बताता हूँ, हाँ 2 सेकंड। मैं आपको इस पे भी दिखाता हूँ। कुछ लेना, या चलो इधर ही बता देता हूँ। तो हो क्या रहा है ना, खुल गया शायद। अभी इधर हो क्या रहा है ना, समझो ये एरे है, हाँ, और ये उसके इंडेक्सिंग है। हाँ, तो अभी हो क्या रहा है, जैसे मैंने अभी रिदम लिख दिया, हाँ, तो ये 8 का हो गया, चलो अभी इसको कम कर देते। तो अभी उधर 7 क्यों आ रहा था, आपने देखा उधर लाइन 1 कॉलम 7 आ रहा था, हाँ, लाइन 1 कॉलम 7 आ रहा था। तो उधर हो क्या रहा है ना, क्योंकि एम के बाद कुछ है नहीं, लाइन खत्म हो रही है उधर, ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है, तो स्ट्रिंग का एंड सी में \0 आ चुका है, \0, तो इसलिए वो उधर 7 हो रहा है। हाँ, समझा समझा। सिमिलरली दूसरे का भी 6 कैरेक्टर्स हैं और साथ में एंड ऑफ लाइन होगा तो इन द एंड 14 हो जाएंगे। करेक्ट।
Yes. अभी 2 सेकंड आगे का बदलता हूँ उसमें। तो अभी ये देख रहे हो ना, ये डिवाइस आईडी है। हाँ, जो नीचे सेकंड लाइन में दिख रहा है ना, डिवाइस है, डिवाइस वो आपके डिवाइस का ये। और आई नोड नंबर जो है ना, आई नोड नंबर वो मैं आपको कल बताऊंगा। आई नोड लिंक्स ब्लॉक ये सब कल बताऊंगा। आई नोड इस आई नोड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। लिंक्स अगर फाइल सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 काम होते हैं: फाइल मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट, और एक और था। मैं आपको बता देता हूँ वो। तो उसमें फाइल मैनेजमेंट के लिए ना, फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम आईनोड नंबर से पहचानता है। आईनोड नंबर जैसे आपको कैसे क्लास में रोल नंबर दिए जाते हैं, वैसे हर एक फाइल को आईनोड नंबर दिया जाता है ऐसे। अभी यूजर आईडी देख रहे हो ना, यूजर आईडी ये यूआईडी 1000 है और ये ग्रुप आईडी 1000 है। ग्रुप में एक्सेस अभी फिलहाल किसी को भी नहीं है, और यूजर एक्सेस भी किसी को भी नहीं है। एक्सेस देख रहे हो, ये एक्सेस बताता हूँ। ये एक्सेस जो है ना, ये नंबर दिख रहा है ना जो, ये इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको इसमें भी आ सकता है, प्लेसमेंट में आता है। तो उस पे ये होता है, क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन, बहुत ही इजी, मतलब इस पे आता है। हाँ, एक ऐसे क्वेश्चन है आपके पास गोल्ड वायर है। हाँ, गोल्ड वायर 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मेरे को पता नहीं क्वेश्चन किसी ने, आप में से किसी को पता है या नहीं, बता देता हूँ। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाँ, यू आर अलाउड टू कट इट ओनली फ्रॉम 2 प्लेसेस। वो वायर को आप 2 जगह से काट सकते हो सिर्फ। तो और आपको मतलब आपको एक आपने एक लड़के को काम पे रखा है। आपको उसको डेली वेजेस पे काम पे रखना है। आपको उसको डेली पगार देनी है, और पगार कैसे, गोल्ड वायर के टर्म्स में देनी है। आपके पास 7 सेंटीमीटर की वायर है, आप उसको सिर्फ 2 जगहों से काट सकते हो। और ऐसा काटना है भाई कि उसको रोज पगार मिलती भी रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सिर्फ 2 जगह से काट सकते हो। कोई बता सकते हैं कैसे, किधर से काटोगे, किधर कट मारोगे तो फिर प्रॉपर आएगा? कोई नहीं, तो चलो बता देता हूँ। बता बता। ये कोई है बोलने के लिए? नहीं। क्या होता है ना, समझो आपको 7 सेंटीमीटर है। हाँ, 7 लेना है। मधुर आवाज गई तेरी। So what you is, you cut it from डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर के बाद मीटर का Madhur, your voice is breaking. टुकड़ा दोगे। हेलो? Madhur, you are not audible. हेलो? एम आई ऑडिबल? You are now, but you weren't clear. दो सेकंड, वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अब आ रही है? हाँ आ रही है। तो अब होगा क्या, 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटेंगे। तो पहले दिन पे आप उसको 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा दे दोगे, हम्म, और फिर अगले दिन पे आपको उसको अगले दिन पे आपको उसको अभी 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए उसके पास। तो व्हाट विल डू, टेक 1 सेंटीमीटर बैक, वापस से। उसके बाद फिर तीसरे दिन क्या करोगे ना, यू गिव हिम बैक, या पहले दिन पे समझो इधर है, दूसरे फर्स्ट डे पे आप उसको 1 सेंटीमीटर का एक दोगे। Madhur, you are still breaking. Madhur, you are not audible.
Hmm. Madhur, I think we should continue this problem tomorrow. तब तक चुप नहीं हो. हाँ. हेलो, हाँ, now you are audible. अब आ रही आवाज? हाँ, अब कटनी नहीं चाहिए हाँ, बस तो बीच अभी में. वो क्या रहना उसमें, तो वो क्या रहना उसमें 2 सेकंड में जल्दी बता। नहीं नहीं, जो आपने कमेंट में डाले ना अभी वैसा नहीं होगा। फर्स्ट डे पे आप उसको क्या दोगे ना, फर्स्ट डे पे उसको 1 सेंटीमीटर का पीस दे दोगे। सेकेंड डे पे आप उससे 1 सेंटीमीटर का वापस लेके 2 सेंटीमीटर का दे दोगे। फिर थर्ड डे पे आप उसको 1 सेंटीमीटर वाला वापस दे दोगे। सो नाउ ये वेजेस ऑफ 3 डेज, दैट इज 1 + 3, 1 + 2, दैट इज 3। फिर फोर्थ डे पे आप क्या करोगे ना, आप उससे तीनों दोनों टुकड़े जो दिए हुए आपने उसको वापस ले लोगे। यू विल टेक बैक 1 and 2 सेंटीमीटर and give him 4. So now he has 4 days wages. Then फिफ्थ डे आप उसको 1 सेंटीमीटर वाला दे दोगे। सो नाउ ये 4 + 1। सिक्स्थ डे पे आप क्या करोगे, उससे 1 सेंटीमीटर वाला वापस ले लोगे एंड यू विल गिव हिम 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। सो नाउ ये वेजेस ऑफ 6 डेज, करेक्ट, गोल्ड का वायर है वो। सेवेंथ डे पे आप उसको 1 सेंटीमीटर वाला भी दे दोगे। सो नाउ ये वेजेस ऑफ ऑल 7 डेज। ये लॉजिक है इसमें। ये क्वेश्चन मतलब इसमें लॉजिक वाले क्वेश्चंस में पूछा गया बहुत बार। रिदम ने भी ऐसे जो रिदम कंपनी में सिलेक्ट हुए उसको उधर पूछा गया था ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन। सो ही नोज दैट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपका लॉजिक चेक कर सके, बेसिक लॉजिक आपका कैसे है। सो नाउ यू गेट द लॉजिक, लाइक फर्स्ट डे पे आपको 1 सेंटीमीटर देने। अभी इसका इससे कंसर्न क्या है मैं ये बताता हूँ। Yeah. सो अब क्या हो रहा है ना इसमें, आपने इधर देखा 60664, पहले जीरो को छोड़ दो, ये 3 नंबर से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हो क्या रहा है ना, अगर राइट रीड का सिर्फ ये है ना, रीड जैसे ये दिख रहा है रीड, ये किसके लिए ना, ये पहले बता देता हूँ। ओनर के लिए पहले 3 है डैश आर डब्ल्यू, फिर ये ग्रुप के लिए सेकंड वाले डैश आर डब्ल्यू, फिर ये थर्ड के लिए उसके बाद आर डैश डैश। अभी बता देता हूँ क्या क्या मतलब है इसका। सो आर का मतलब है आर इस के लिए, आर के लिए हम लोग आर को हम डिनोट कर रहे हैं 4 से, आर इक्वल्स 4, हाँ, राइट इक्वल्स 2 एंड एक्स इक्वल्स 1। तो अभी आर क्या मतलब क्या, रीड, रीडिंग परमिशन से इधर इसके लिए 4 है, राइटिंग परमिशन से इसके लिए 2 है, तो 4 + 2 करके उधर 6 आए। समझ में आ रहा है? ये आर डब्ल्यू जो आ रहा है ना, ये आर डब्ल्यू डैश एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है ओनर को भी, इसलिए उधर डैश दिख रहा है। अगर एग्जीक्यूट परमिशन होती थी तो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स दैट इज 6 + 2 4 + 2 + 1 = 7, इधर 7 आ जाता था। Okay, 7 okay. सेकंड वाले के लिए भी ऐसे ग्रुप परमिशन, ग्रुप के लिए भी आपने अभी तो ग्रुप ऐड नहीं किए, ग्रुप के परमिशन भी यही है। फिर अदर्स को क्यों नहीं है राइट का परमिशन, अदर्स को क्योंकि आपने ये नहीं दिए, अदर्स को राइट का परमिशन यूजुअली नहीं दिया जाता है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो अदरवाइज से आपको लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना और वल्नरेबल हो सकता है उससे। मतलब अगर समझो जैसे आपने आपके घर में आप 2 जने हो तो सेम कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपका काम अलग है, उसका काम दूसरे आपके भाई बहन का काम अलग है। सो यू क्रिएट 2 डिफरेंट प्रोफाइल। तो दूसरे प्रोफाइल में भी आपके ये तो दिखेंगे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सेम हार्ड डिस्क है आपके पास, हार्ड डिस्क दो नहीं है दोनों यूजर्स के लिए, तो आपको दोनों तो दिखेंगे ही। सो अदर्स को भी आपकी फाइल्स दिखेंगी, लेकिन वो सिर्फ रीड कर सकते हैं आपकी फाइल्स। आप रीडिंग परमिशन भी निकाल सकते हो और आप नहीं तो इसके लिए राइटिंग परमिशन भी डाल सकते हो अदर्स के लिए। यू अंडरस्टैंड इट? और
और ये नीचे जो अभी हम लोग नीचे पे आते हैं यूआईडी और ग्रुप आईडी, मैंने जैसे आपको बोला भाई कि यूआईडी मतलब आपके यूजर आईडी 1000 आपको पूरा एक्सेस है इसके लिए। ग्रुप आईडी फिलहाल आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि यू आर नॉट इन अ ग्रुप, यू आर नॉट गिविंग एक्सेस, यू आर नॉट कनेक्टेड टू अदर लिनक्स यूजर्स थ्रू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये एक्सेस एक्सेस जो देख रहे हो ना, ये ये एक्सेस टाइम जो है ना, ये एक्सेस टाइम आपकी फाइल का है। आपकी फाइल को कब लास्ट टाइम खोला गया था? हाँ, लास्ट टाइम खोला कब गया था? सो दैट इज फॉर इट। मॉडिफाई कब किया गया था और चेंज कब किया गया था? इसमें आईनोड का भी है, आईनोड को कब मॉडिफाई किया गया था और चेंज कब किया गया था। और बर्थ दिया नहीं हुआ है अभी तक, बर्थ अभी न्यू आया है इसमें। सो आपने एक्सेस कब किया था लास्ट, इसको दिखा रहे हो टाइम वहाँ प्लस 5:30 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये जीएमटी के हिसाब ग्रीनविच मीन टाइम के इसमें आईएसटी ऐड करके आईएसटी टाइम बता रहे हैं। 15:24 देखो अभी 15:40 हुई, सो दैट इज आईएसटी टाइम। अब अगर चेंज करवाना देख लीजिए 2 सेकेंड। सो आई ओपन इट, सेव कर दिया जो भी लिखा हुआ था, ये सब अभी सेव हो गया ये सब। आई होप आपको \0 का समझ में आ गया होगा सबको। तन्मय भाई जवाब तो दे दे, कम से कम 2 ही चाहिए। मैं मुझे तो आया समझ, मैंने भी पहले टॉपिक नहीं समझा था। हाँ मधुर, हमें समझ आया। मुझे भी समझा। तो अभी जैसे सेव हो गया, हाँ स्टार दिखते हैं, सेव नहीं अगर हुई रहेगी तो फाइल, अगर तो उसके बाद स्टार नहीं हट जाता है अगर सेव कर दिया तो। अभी फाइल साइज वापस चेंज हो जाएगी स्टार्ट करूंगा तो, क्योंकि हमने पूरा वो ये कर दिया। तो देख रहे हो अभी फाइल साइज 223 हो गया। डिवाइस आईडी वगैरह सब देख लो ऊपर से ही, चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। उसके बाद एक्सेस टाइम चेंज हो गया, मॉडिफाई टाइम चेंज हो गया और चेंज भी ये हो गया। 1 सेकंड का फर्क क्यों दिख रहा है? 1 मिली सेकंड 1 सेकंड का, क्योंकि वो चेंज करके सेव किया ना, इसके लिए वो ये दिखता है टाइम चेंज। तो ये स्टैट के बारे में था पूरा वो सब कुछ। और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टैट वगैरह को, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा भाई पूरा। एक्सेस टाइम आई नोड क्या होता है, आई नोड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। 4096 रेगुलर फाइल दिखा रहे। फाइल के टाइप भी बता देता हूँ थोड़े से। फीफो करके फाइल्स रहती है, पाइप करके फाइल्स रहती है, और फाइल के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। रेगुलर फाइल एकदम, और जैसे हमने ls देखा था तो ls भी देख सकते हो। इसका hello.txt दिखा रहा है फिलहाल तो, ls-a कर दिया। ls-a में जो डॉट दिख रहा है ना, .com ये बोलते हैं करंट डायरेक्टरी, और हाँ .com करंट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अगर cd डॉट ये करूँगा ना, cd स्पेस डॉट, तो हम करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे वापस। और cd स्पेस डबल डॉट करूँगा ना तो पेरेंट डायरेक्टरी होती है, वो पेरेंट डायरेक्टरी को रिफर करते हैं। तो हम डेस्कटॉप से इसमें आ गए, फाइल इसमें। अब कल मैं क्या क्या कराने वाला हूँ मैं ये भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा फिर। कल मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। ये सब क्या है, अभी स्वैप फाइल फिलहाल बता देता हूँ। स्वैप फाइल क्या है, आपने आप में से जितनों ने भी अभी ये किया होगा ना, क्या बोलते हैं, मतलब इस पे लिनक्स इंस्टॉल किया होगा उबंटू, तो आपको स्टार्टिंग में पूछा होगा स्वैप फाइल का आपको साइज कितना चाहिए जब आपने इंस्टॉल किया हुआ है लिनक्स तो। हेलो, यस मधुर, यस मधुर, वो आता है स्वैप। तो उसमें आपको दिखा होगा भाई कि स्वैप फाइल का ये पूछा होगा आपको साइज कितना चाहिए आपको। अभी मेरे इसमें देख रहे हो 720 दिख रहे हैं, 720 MB है। शादी
आधी फाइल एकदम बाइनरी में, इसके लिए ओपन नहीं हो पाएगी, लेकिन पूरी खाली है, इतना लिख के देता हूँ, पूरी ब्लैंक है अभी। हाँ, बनी कब थी देख लेना। आज सुबह 9:30 के आसपास दिखा रहे, क्योंकि आज सुबह 9:30 बजे मैंने इंस्टॉल किया पूरा Ubuntu इस पे वर्चुअल मशीन पे। मैं एक्चुअली लिनक्स यूज़ करता हूँ, मेरे पास सेपरेट मतलब मैंने ड्यूअल बूट किया हुआ है, पर मेरे को रिकॉर्डिंग के से प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने ये कर दिए, इसको वर्चुअल मशीन में भी इंस्टॉल कर दिए। और ये देख रहे हो, ये लिनक्स का फाइल सिस्टम ना रूट से चालू होता है। रूट को हम लोग एज ए स्लैश रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए वो ऐसे दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रूट डायरेक्टरी में भी। और उसको एक्सेस और मॉडिफाई कभी किया हो गया था सुबह 9:30 बजे, तभी जब ये फाइल बनी थी, और मॉडिफाई भी तभी किया गया था। इसका साइज जो है ना अभी 720 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ डाला नहीं था, लेकिन यूजुअली इसको रैम का साइज जितना रहता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसका हाफ या उसका 1/4 रखा जाता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत जन इसको रैम का डबल करते हैं, क्योंकि उनका हैवी यूज है। तो अभी होता क्या नहीं, ये स्वैप फाइल क्या रहती है, स्वैप फाइल के अंदर ना, अगर समझो आपका कोई प्रोसेस है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाना है, जैसे समझो आपका सी प्रोग्राम है समझो, तो सी प्रोग्राम को जो रिसोर्सेज वो चाहते हैं, जैसे समझो एक फाइल ओपन करना चाहते हैं या कोई फाइल का एक्सेस करना चाहते हैं आपका सी प्रोग्राम, तो वो जैसे समझो अभी लिख दिया मैंने, तो ये जैसे बेसिक एक प्रोग्राम होगा फाइल को ओपन करने के लिए। हाँ, अभी आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा है सबको अभी, आई एम एक्सपेक्टिंग। यस। तो हमने क्या किया ना, एक इंटीजर दी है, फाइल डिस्क्रिप्टर है, फाइल डिस्क्रिप्टर बता देता हूँ, एज अ फाइल डिस्क्रिप्टर भी इसलिए एफडी उसका नाम रखा है। तो अभी एफडी इज इक्वल्स टू ओपन hello.txt o_rd ओनली। हाँ, तो ये o_rd क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, हमको फाइल को रीड मोड में ओपन करना है। ओपन सिस्टम कॉल है, उसके बाद कौन सी फाइल ओपन कर रहे हो उसका नाम, और उसको कौन से मोड में ओपन करना है वो, इधर एक्चुअली डबल कोट आएगा। हाँ, तो अभी printf क्या कर रहे हैं ना, %d क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। printf मैं आपको बताता हूँ उसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा, 3। और उसके बाद क्लोज fd, फाइल डिस्क्रिप्टर क्लोज करना है, मतलब फाइल जो ओपन की उसको क्लोज करना है, और रिटर्न 0 टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम बंद। ओके, तो अभी होगा क्या इसमें, समझो हमको hello.txt ओपन करनी है, और किसी और ने उसको पहले से किसी और प्रोसेस ने प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट, इसको मतलब कंपाइल करूंगा तो इसकी exe बनेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर उसको रन करूंगा ना, तो अब रैम पे जाकर प्रोसेस बन जाती है, और वो फिर एक्सेस करती है उसको। तो समझो अभी मैंने इसको रीड करने के, इसको प्रोसेस बनाया, इसको रैम प्रोसेस बना के रैम पे आ गया मेरा प्रोग्राम, हाँ, एज द एग्जीक्यूटेबल मेरी exe रैम पे आ गई। तो व्हाट विल हैपन नाउ इज, समझो उसको hello.txt नहीं मिलता है, कोई और फाइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लॉक लगा हुआ है वो फाइल पे। तो क्या होगा ना, ये प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना स्वैप मेमोरी में, ये प्रोग्राम बैठ जाएगा वेटिंग स्टेट में, चल जाएगा ये प्रोसेस, और बैठ जाएगा उधर ही वेटिंग स्टेट में, स्लीप में चले जाएगा। अगर समझो स्लीप रैम पे स्लीप होगा, रैम पे, तो अगर समझो स्लीप समझो 1 सेकंड का है, हाँ, तो 1 सेकंड के बाद वो उठ के वापस देखेगा कि इस पे लॉक हटाया नहीं, ये फाइल अभी मेरे यूज के लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो वो क्या करेगा, वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा, जैसे o_rd ओनली में खोलेगा फाइल को। अभी हमने उधर कुछ लिखा नहीं भाई कि हमको पढ़ना है उस फाइल से या क्या, तो वो उसको कुछ पढ़ेगा नहीं। उसके बाद वो रिटर्न, उसके बाद हम इधर आ जाएंगे ये स्टेटमेंट पे, printf fd करेगा वो, fd 3 आएगी वैल्यू। ये क्यों आएगी 3, मैं आपको वो भी कल बता दूंगा। क्लोज fd मतलब क्लोज फाइल कर देगा, फाइल डिस्क्रिप्टर से हम लोग रेफर कर रहे हैं उसको, जैसे फाइल को रोल नंबर inode बोला, तो ये हमारा रोल नंबर है, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ही दिया है, वो उसका अपने हमारे प्रोग्राम के अंदर ही है, सिस्टम के अंदर नहीं है। उसके बाद क्लोज कर देंगे उस फाइल को, रिटर्न 0, तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
तो अगर इसको ओपन को hello.txt नहीं मिला ना, मतलब समझो लॉक लगा हुआ है फाइल पे या कोई और मतलब कोई और प्रोसेस यूज कर रहा है रैम पे उसको, तो इट विल गो इन स्लीप दिस प्रोग्राम। तो समझो इस प्रोग्राम का मैंने नाम दे दिया MyExe, तो MyExe ना स्लीप पे चली जाएगी रैम पे ही। अगर रैम समझो रैम मेरा अभी 5 GB मैंने एलोकेट किया है इसको, अगर समझो 5 GB उसको 5 GB पूरा भर चुका है रैम, कोई जगह ही नहीं है, तो स्लीप स्टेट में स्लीप के लिए भी जगह नहीं है और प्रोसेस पहले से ही स्लीप हो रही है, स्लीप में है रैम पे, इसके पास स्लीप के लिए भी जगह नहीं है। तो व्हाट विल हैपन इज, ये जो स्वैप फाइल है ना, दिस एक्ट्स एज अ रैम, दिस इज एक्ट्स एज अ रैम ऑन अ हार्ड डिस्क। रैम अलग होता है, जैसे आपको पता है हार्ड डिस्क पे हमने टेम्परेरी रैम है, टेम्परेरी रैम, तो इस पे स्लीप स्टेट में चली जाएगा स्वैप फाइल। और उसके बाद जब रैम पे खाली हो जाए जगह या इसका hello.txt इसको मिल जाता है यूज करने के लिए, तो hello.txt तो ये जो हमारा MyExe है वो रैम पे आ जाएगा। अब समझो hello.txt पे से लॉक हट गया पर रैम पे जगह फिर भी नहीं है, स्लीप हो रही है अभी भी प्रोसेस, तो वो क्या करेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ दूसरी प्रोसेसेस जिनको काम नहीं है अभी स्लीप है, जिनका अभी भी लॉक लगा हुआ है जिनके रिसोर्सेज पे, उनको स्वैप फाइल में डालेगा और स्वैप फाइल पे जिसका भी रिसोर्सेज, स्वैप फाइल पे जो भी प्रोसेस है जिनका रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको रैम पे लाएगा। तो हमारा MyExe रैम पे जाएगा और फिर उसके बाद ना वो अपना काम करेगा, जैसे FD वो बोला, ओपन करेगा फाइल को रीड मोड में, फिर वापस वो उसको FD प्रिंट करेगा, फिर फाइल बंद करके ये कर देगा, हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, MyExe रैम से वापस आ जाएगा। रैम पे से उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देगी, किल कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसलिए वो उधर ये बता रहे हैं। तो इसके लिए वो स्वैप फाइल है, मैंने बता दिया जैसे स्वैप फाइल। बाकी ये सब टेम्प यूजर वेरिएबल सिस्टम SRE प्रॉक ऑप ये MNT मीडिया रन ये सब कल बता दूंगा, ठीक है। बिन लाइब्रेरी ये सब, ये जिन पे एरोस दिखा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल फोल्डर्स हैं। और रूट है, रूट का आप देख रहे हो ना एक्सेस नहीं दिखा रहे, एक्सेस मांगने जाऊंगा ना तो वो रूट का पासवर्ड मांग, और किसी ने तो डाला था भाई कि ना उनको ये एक ऐसी प्रोसेस लर्न करनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही स्टार्ट हो और उसके साथ ही बंद हो, तो उसको डायमंड प्रोसेस बोलते हैं, DAEMON। तो ये देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू रन GVFSD एडमिन डेमन प्रोसेस। तो डेमन प्रोसेस ना कंटिन्यूसली रन कर रही है और देख रही है भाई कि कौन सी फाइल्स को यूजर एक्सेस करना चाहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता तो नहीं भाई कि समझो कि मैं मेरा PC कोई और यूज कर रहे हैं, तो हमेशा पासवर्ड मांगता ही है ऐसी चीज़ों के लिए भाई, जो भी रिस्की रहती है। या जो सूडो, रूट को ना सुपर यूजर बोलते हैं, सूडो आपने सुना होगा, कमांड लाइन में हम लोग डालते हैं बहुत बार, इसलिए उसको सूडो बोलते हैं, सुपर यूजर टू। एडमिनिस्ट्रेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना होता है ना कोई भी प्रोग्राम, तो उसको सुपर यूजर टू बोलते हैं। ऑथेंटिकेट किया तो अभी हमको फाइल का एक्सेस मिल गया। देख रहे हो अभी फोल्डर एम्प्टी दिखा रहे हैं, क्योंकि रूट में एक्चुअली कुछ दिखता नहीं ज्यादा, पर हम अभी इसमें जा सकते हैं। देखो रूट में आ गए, LS किया, देख LS में ये आपको सब दिख रही थी। अभी CD, तो अभी हमने देखा CD रूट किया तो परमिशन डिनाइड, क्योंकि एक्सेस नहीं है, पासवर्ड मांग रहा है वो सबसे, पर इसमें पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि डायरेक्टली वो एक्सेस डिनाई कर सकता है। उसको लगता है भाई कि ये अनऑथोराइज सोर्सेज से आ रहे हैं रिक्वेस्ट। सुपर यूजर डू किया तो सुपर यूजर का पासवर्ड मांगेगा। अब क्या दिखा रहा है, देखा 2 सेकंड, कमांड नॉट फाउंड दिखा रहे हैं क्योंकि सूडो रूट में CD के पास एक्सेस नहीं है वो इस रूट में जाने के लिए। इसके लिए वो सूडो करने के बाद भी ना सुपर यूजर ने अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिया CD को भाई कि तू रूट में जा, तो भी वो नहीं जा पा रहे, समझे, परमिशन नहीं मिल रहा है उसको। इसके लिए रूट भी अभी खाली दिख रहा है आपको। स्वैप फाइल को हम लोग, स्वैप फाइल भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पर उसको ओपन भी नहीं कर पाते क्योंकि बाइनरी में पढ़ भी नहीं पाएंगे हम लोग। अरे आप कितने लोगों को C का टूल चेन पता है, C प्रोग्रामिंग का, लाइक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, किसी को पता है?
हम पहले उसको कंपाइल करते हैं, उससे ऑब्जेक्ट फाइल बनता है। फिर हम जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो बाइनरी में होती है, देन हम उसको रन कर पाते हैं क्योंकि कंप्यूटर। उसके बीच में भी बहुत सी चीजें होती है। अच्छा। हम्म। होता है ना, पहले प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं ना, तो कंपाइलर तो काम कर देते हैं, कंपाइलर फिर इंटरप्रेटर जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रेटर असेंबली लैंग्वेज में कोड बनाता है, असेंबली। ये कोड्स ना, इसके लिए भी एक कमांड है जो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा कि टेम्पररी फाइल्स जो रहती है ना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो वो स्टोर नहीं होगी, मतलब जैसे कंपाइलर जो फाइल बनाता है हमारे प्रोग्राम की, अभी आपने जैसे 2 सेकेंड, कल मैं आपको सब दिखाऊंगा। ये जो हैश इंक्लूड देख रहे हो ना, ये ये फाइल का नाम है stdio.h। तो कंपाइलर क्या करता है ना, ये stdio.h की फाइल ना बहुत बड़ी है, समझो 500 लाइन की है, अंदाजा मेरे को भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो क्या करता है ना, वो कंपाइलर क्या करता है, पूरी फाइल को ना कॉपी करता है उधर उसमें stdio.h को, और इधर इसके ऊपर पेस्ट कर देता है, ये इंट मेन के ऊपर पूरा पेस्ट कर देगा। वो मैं आपको कल पूरा फाइल दिखाऊंगा। उसके बाद कल का लेक्चर मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फाइल का ये सीखने, तो फाइल सब सिस्टम, तो इसके लिए कल अटेंड करना जितना हो सके। और उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है ना, पूरा जो लाइब्रेरी फाइल है ना stdio.h और हमारा इंट मेन, उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जाके वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है इसमें .exe में, और .exe को फिर हम लोग रैम पे रन कर सकते हैं। और .exe भी मतलब असेंबली भी ना डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल फिर जाके exe में बनती है। ऑब्जेक्ट फाइल इज पार्शियल बाइनरी कोड, पूरी तरह से कंप्लीट बाइनरी कोड नहीं देते। उसके बाद जब हम उसको करते हैं ना exe फाइल में कन्वर्ट, तब जाके वो पूरा कंप्लीट बाइनरी फाइल बनती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी ये भी समझ में नहीं आता भाई ये हैश इंक्लूड ये क्या है सब। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं पूरा इसको, फाइल को, exe को, exe। और वो exe में रैम पे रन होती है, रैम वगैरह ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसा लैंग्वेज, हार्डवेयर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है 0101, और वो कैसे समझ में आता है, वो करंट के थ्रू समझ में आता है। ये एकदम ही डीप हो गया, इतना डीप एक्चुअली कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो इसके लिए बता दिया। ओके, सो और कुछ डाउट है किसी को? आई होप किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है समझने में, या मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं था। किसी को बताओ कोई बताओ। डाउट्स वगैरह है तो अभी पूछ लो। वी आर अबाउट टू कंक्लूड आवर सेशन, 3:57 हो चुके। मेरे कर को एक दो चीज़ें और मतलब 2 मिनट की बात करनी थी। आप लोग पहले डाउट्स पूछ सकते हो, उसके बाद मैं बोल दूंगा जो आपको मेरे को बोलना था। आई थिंक मधुर यू शुड गो फॉर इट। तो कल हम लोग फाइल सिस्टम और फाइल सिस्टम के प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, आप में से बहुत जनों ने डाले आपको एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस यू एक्सपेक्ट अस टू टीच इन द वर्कशॉप। तो ये स्वैप स्पेस और डिस्क मैनेज, स्वैप स्पेस तो मैंने आपको जैसे अभी बताया, मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा। प्रोसेस सब सिस्टम में भी, प्रोसेस सब सिस्टम हम थोड़ा लेंगे, अगर हमको टाइम मिला तो 4 दिन के हिसाब से एक्चुअली मेरे को लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो AWS इज स्पीकिंग ऑफ AWS, वो पूरा क्लाउड है, वो पूरा इसमें आता ही नहीं है। दिस व्हाट वी आर लर्निंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स कंसेप्ट। सो AWS तो नहीं होगा हमारे क्लास में। C++ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन C, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कोई काम ही नहीं है। एनी आईडी फॉर बैश स्क्रिप्ट, सॉकेट प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्निकली देखा जाए तो अगर हम लोग क्लास को एक्सटेंड कर पाए तो कर सकते सॉकेट प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा उसका एक ही प्रोग्रामिंग है, उसका एक ही प्रोग्राम है EPM, क्लाइंट सर्वर का सिखा दूंगा, सी में ही रहेगा वो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखा हुआ है पूरा लिनक्स का। और एनी आईडी फॉर बैश स्क्रिप्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को अभी तक कोई आइडिया नहीं है बैश स्क्रिप्ट का क्या रहता है क्या नहीं। तो आईडी में विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ, आई डोंट नो इफ इट सपोर्ट्स बैश स्क्रिप्ट। और कंपैरिजन बिटवीन विंडोज सी कमांड लाइन कमांड्स एंड लिनक्स कमांड्स विल बी मोर रिलेटेबल। तो ये आपको बता दूंगा थोड़ा सा जितना हो सकता है मेरे को, जितना विंडोज के बारे में पता है, क्योंकि विंडोज इज अ क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स नहीं है, उसका कोड खरीदना ही पड़ता है आपको, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदनी पड़ती है आपको। उसके अंदर का टेक्निक पूरा वर्किंग डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लिनक्स। बैश प्रोग्रामिंग नहीं सिखा जाएगी आपको। I'll take up bash programming। आधे घंटे ओके, का सेशन सो होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो
हाँ, नहीं हो उसका पाएगा हम मेरे लोग से। सोच रहे हैं कि आगे कोई सेशन लिया जाएगा तो उसमें हम हाँ, अच्छे से कर। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो फाइल हैंडलिंग में आपको कल सिखाने वाला हूँ, फाइल हैंडलिंग हम्म। इस पे ध्यान दे दो, फाइल हैंडलिंग में कल सिखाऊंगा आपको। और आपको चाहिए तो मेरे पास बुक्स है जो मैंने रेफर की थी पूरा लिनक्स पढ़ने के लिए, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ड्राइवर क्रिएशन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत डीप है, बहुत टफ है वो एक्चुअली। तो मेरे को नहीं लगता भाई कि उतना हो पाएगा ये लेक्चर क्लास में। हाउएवर जिसने भी ये डाले ड्राइवर क्रिएशन का, जिसको भी जरूरत है वो सीख सकते हैं मुझसे। आई टीच इट टू यू सेपरेटली। लिनक्स तो हम लोग करने ही वाले, हाउ टू सेट अ प्रोग्राम टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली ऑन बूटिंग अप द सिस्टम। ये डिवाइस ड्राइवर के थ्रू भी हो सकता है। अगर डिवाइस ड्राइवर हम लोग बना लेते हैं अपना, जिसको हम लोग डेमन प्रोसेस की तरह बना देते, तो वो जैसे ही सिस्टम चालू होगा तो हमारा डिवाइस ड्राइवर भी चलना चालू हो जाएगा। या फिर डेमन प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिसको डेमन प्रोसेस लेकिन कैसे होता है ना, हमको उसको पहले पेरेंट प्रोसेस से बनाना पड़ता है एंड देन उसको अलग करना पड़ता है। लाइक समझो अभी पेरेंट प्रोसेस है, वो उसको चालू करेगा, देन वी हैव टू सेपरेट द पेरेंट प्रोसेस फ्रॉम द चाइल्ड प्रोसेस, और चाइल्ड प्रोसेस अपने आप चलता ही रहेगा। बूटिंग से चालू नहीं होगा ये, क्योंकि हम लोग खुद उसको लिख के प्रोग्राम चालू करेंगे। पर ये तब, जब तक हम इसको मैन्युअली बंद नहीं करते या जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम बंद नहीं करते ना, तब तक ये चलता रहेगा डेमन प्रोसेस। और इसको हम लोग कोई काम करवाएंगे, जैसे लिखना है एक फाइल में कंटिन्यूसली हर एक एक दो दो सेकंड के बाद। और इसमें हाँ। क्या होगा ना, पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को चालू करके पेरेंट प्रोसेस को अलग करना है और उसको पेरेंट प्रोसेस को बंद करना है। हाँ, मधुर मधुर मधुर, इट्स ऑल राइट। ये आगे लिनक्स और वो है, विल टेक अप इट हाँ, टुमारो। इन सब की टीजी मीट वगैरह है। बाकी लोगों की भी, हमारी भी थी, हमारी तो मिस हो गई। बट लेट्स रैप अप फॉर नाउ। ठीक है, कल ओके, पकड़ते हैं तो अच्छे से। आई कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू। ऑल राइट, बाय बाय। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी सजेशन हो तो। ऑल राइट, बाय बाय।